Hello everyone. Today we will learn regarding Dhatu Bhedena Purush Sangathan. In this lecture, I have already prepared notes and then capture the images and then set in the PPT because of lack of knowledge regarding charts etc. But with this format, if you write in the exam, it will be easy to remember for you as well as uh, it create good impression to the examiner also. Okay. Dhatu Bhedena Purush Sangathan is one of the important topic. It can be asked for 10 marks that we will discuss which type of question can be asked. It will be discussed at the end of the lecture. In this lecture, first we will discuss regarding Srushti Utpatti Kram. In Padarth Vignan, you will learn in detail regarding Srushti Utpatti Kram. Here I am going to explain in short according to Acharya Sushrut. In Padarth Vignan, you will learn according to different Acharyas. According to Acharya Sushrut, Srushti Utpatti Kram, first Avyakta, then Mahat, Mahan, then Ahankar. From that, Satvik, Rajsik and Tamsik. Satvik and Rajsik gives Vekarik. From that, Ekadash Indriya. Okay. Panch Jnanendriya and Panch Karmendriya and Mana. Then Tamsik, Rajsik and Tamsik give Bhutadi. From that, Panch Tanmatra. Then at the end, Panch Mahabhut. Okay. So it was regarding Srushti Utpatti Kram. Now regarding धातु भेदेन पुरुष संगठन, मतलब कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, तो पुरुष का कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना हुआ है अकॉर्डिंग टू वेरियस आचार्य, एक धातुआत्मक, द्विधातुआत्मक एटसेट्रा. ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग निरुक्ति. धातु धारणा धातव, धारण मतलब कि जो होल्ड्स और सस्टेन करके रखता है. पुरुष, पुरुष की निरुक्ति अकॉर्डिंग टू अमरकोश, पूरी शरीरे शेते इति पुरुष. Factors which sustain the body is called dhatu. The soul which is present in the body is known as purush. Now regarding different purush, ek dhatuatmak, dvidhatuatmak, etc. Okay, first ek dhatuatmak purush. चेतना धातु रप्यक स्मृत पुरुष संज्ञक चरक शारीर 1/16. आत्मा alone itself is called एक धातुआत्मक पुरुष. Now regarding द्विधातुआत्मक पुरुष, अगर चार्ट की तरह से आप याद रखते हो तो इट विल बी इजी टू रिमेंबर. ओके, फर्स्ट अग्निसोम, देन स्थावर जांगम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ. श्लोक आपको याद करने हैं तो भी आप यहाँ कर सकते हो. द्विधातुआत्मक एवं आग्नेय सौम्यश्च. सुश्रुत सूत्र 1/22. सेकंड वन इज लोको ही द्विविध स्थावरो जांगमश्च. सुश्रुत सूत्र 1/22. The entire universe and its materials are classified into two types, Agneya and Soumya. Okay, that you can say. The material are classified into Sthavar and Jangam. ये आप पदार्थ विज्ञान में द्रव्य वर्गीकरण में भी पढ़ोगे, स्थावर, जांगम एटसेट्रा. क्षेत्र is considered as a शरीर and क्षेत्रज्ञ which reside in it, that is आत्मा. Okay, क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा. Okay. नाउ रिगार्डिंग त्रिधातुआत्मक पुरुष. ओके, उसके फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होंगे? त्रिदंडात्मक, गुणात्मक एंड दोषात्मक. ओके, त्रिदंड, ये श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट इन सेकंड ईयर ऑल्सो और फॉर BAMS ऑल्सो, होल BAMS. सत्व आत्मा शरीरम च त्रयम एतत्रिदंडवत लोकतिष्ठति संयोगा तत्र सर्व प्रतिष्ठितम. चरक सूत्र 1/46. त्रिदंड. The combination of sattva, atma and sharir constitute the tridhatuatmak purush. Okay. Now regarding trigunatmak, that all you know, sattva, raja and tama. The combination of sattva, raja and tama constitute the trigunatmak purush. Last one, tridoshatmak. As you know, vat, pit, shleshmana eva deha sambhava hetava. Sushut sharir 21/3. 1/3. The body is from three important factors, vat, pit and kapha. Okay, then पंचधात्वात्मक पुरुष. पंचधात्मात्मक
महाभूतानि ख वायुरग्निर आप क्षितिस्तथा। हियर ख स्टैंड फॉर आकाश। और वाइवा में भी कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ख, सो यू मस्ट नो इट। चरक शारीर 1/27। द कॉम्बिनेशन ऑफ पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इज कॉल्ड एज पंचधात्वात्मक पुरुष। Now regarding षड धातुआत्मक पुरुष, it is one of the important पुरुष in धातु भेदेन पुरुष संगठन. Okay, it mostly it can be asked for 2 marks or 5 marks. और षड धातुआत्मक कई बार ऐसा नहीं पूछते हैं, वो ऐसा पूछते हैं राइट अबाउट कर्म पुरुष, राइट अबाउट अधिकरण पुरुष, राइट अबाउट चिकित्सा पुरुष. तब आपके दिमाग में बत्ती हो जानी चाहिए कि ही इज आस्किंग रिगार्डिंग षड धातुआत्मक पुरुष. ओके, सो दीज आर द सिनोनिम्स कर्म पुरुष, अधिकरण पुरुष, चिकित्सा पुरुष. पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति स एष कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत. रेफरेंसेस सुश्रुतसारी 1/70. इंपॉर्टेंट श्लोक बाय हार्ट करना है आपको. द कंस्टेंट एंड इंटीमेट यूनियन ऑफ पंच महाभूत एंड चेतना इज नॉन एज षड धातुआत्मक पुरुष. It is classified in the field of the performance of chikitsa treatment to physician, hence it is termed as षड-धातुआत्मक पुरुष. मतलब कि जो हम जिस पर ट्रीटमेंट करते हैं फिजिशियन, उसकी वजह से उसको चिकित्सा पुरुष पर भी कहा गया है, क्योंकि बिना आत्मा कुछ नहीं है. पंचमहा उसमें श्लोक में लिखी है पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति स एष कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत. मतलब पंच महाभूत प्लस आत्मा. ओके, आत्मा के बिना कोई लाइव नहीं रह सकता है. खादय चेतना षष्ठ धातव पुरुष स्मृत. चरक शारीर 1/16. द कॉम्बिनेशन ऑफ पंच महाभूता एंड चेतना इज टर्म एज षड धातुआत्मक पुरुष. लास्ट वन. तत्र गर्भस्य पितृज मातृज रसज आत्मज सत्वज सात्म्य जानी. ये षड भाव है जो हम गर्भ शारीर में डिटेल में पढ़ेंगे, और ये श्लोक आपको करना है. ओके, क्योंकि वहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है. सो एनी हाउ यू हैव टू मेमोराइज. सुश्रुतसारी 3/31. द गर्भ इज फॉर्म बाय षडभाव. दीज आर पितृज मातृज रसज आत्मज सत्वज एंड सात्मेज भाव. इन गर्भ शारीर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग पितृज भाव में से हम क्या क्या डेवलपमेंट होता है एट्सेट्रा. ओके, अब कर्म पुरुष गुण. ये श्लोक आपको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसकी क्वालिटीज़ अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड. ओके, तस्य सुख दुख इच्छा द्वेषो प्रयत्न प्राण अपान उन्मेषो निमेषो बुद्धिर्मन संकल्पो विचारणा स्मृति विज्ञान अद्य व्यवसाय विषय उपलब्धिश्च गुणाः. ओके, सुख हैप्पीनेस, दुख ग्रीफ, इच्छा डिजायर, द्वेष जेलसी, प्रयत्न इफर्ट, प्राण इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, unmesh nimesh, closing of the eyes, opening of the eyelids, okay, etc. So these are the quality you have to remember. Okay, सप्त धातुआत्मक पुरुष, सप्त धातुआत्मक पुरुष. रसा अश्रुक मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी धातव. अष्टांगहृदय सूत्र 1/13. ओके, ये श्लोक नीचे लिखा है एलोबरेट द अबाउट श्लोका, क्योंकि मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि पदार्थ विज्ञान अष्टांग हृदय एट्सेट्रा में ये श्लोक इतना सा ही लिख देते हैं, फिर एलोबरेट कीजिए श्लोक. इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए. ओके, इट इज़ फॉर्म बाय रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा एंड शुक्र. ओके, इजी श्लोक है और आपको करना है. अब द्वादश धातुआत्मक पुरुष. ओके, ये श्लोक भी आपको बाय हार्ट करना है. चरक सूत्र 25/4. आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम यो पुरुष संज्ञकः. अब यहाँ पे आप देखिए आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम. तो यहाँ आत्मा और मन पहले हमने चार्ट में बना दिए, फिर इंद्रिय कौन सी 5 है, 5 नंबर, और इंद्रिय अर्थ अगेन 5 नंबर. मतलब कि इंद्रिय 5, इंद्रिय अर्थ 5, और ये आत्मा और मन इस तरह से 12 हुए. अब द्वादश के बाद मैंने डायरेक्ट सप्तद्वश डालने का एक ही रीज़न है, वही श्लोक आप लिख सकते हैं, पर यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि आत्मा मन सेम, इंद्रिय को क्या किया उन्होंने, जो हमने ज्ञानेंद्रिय ही अकेले यहाँ पे काउंट की थी, तो यहाँ पे उन्होंने सप्तदोष में क्या किया है कि ज्ञानेंद्रिय 5 काउंट की और कर्मेंद्रिय 5 काउंट की, और इंद्रिय अर्थ तो एज इट इज़ है. तो इस तरह से सप्तदोष
इस तरह से सप्तदश धातुआत्मक पुरुष बन गया। देन त्रयोदश धातुआत्मक पुरुष, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, सुश्रुत सूत्र 15/3। तो उसमें क्या क्या है ये श्लोक, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट श्लोक, और अष्टांग हृदय, और उसमें त्रयोदश दोष धातु मल मूलम ही शरीरम ऐसा करके जस्ट एक्सप्लेन और एलोबरेट द श्लोका। तो उस और 10 मार्क्स के लिए आते हैं। तो दोष जो वातपित्त कफ है धातु, फिर उसके सभी के बारे में, उसका होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी में क्या फंक्शन हो एट्सेट्रा, यू हैव टू राइट इन डिटेल। ओके, त्रिदोष सप्तधातु एंड त्रिमल, इट इज फॉर्म बाय त्रिदोष वातपित्त कफ सप्तधातु as you know, and trimal mutra purish swed. Okay, here mutra purish swed, just correct it. Okay, now regarding chaturvinshati धातुआत्मक पुरुष. Okay, again ये it can be asked for 2 or 5 marks. पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशति का स्मृत मनोदशी इंद्रियाण अर्थ प्रकृति भी धातु की, चरक शारीर 1/70. डिफ्रेंशिएशन ऑफ धातु अगेन लीड्स टू चतुर्विंशति धातु पुरुष विच इज मेड अप ऑफ अब चतुर्विंशति पुनश्च धातु भेदेन मनोदश इंद्रिया अर्थ प्रकृत्याश्च अभी धातु की, षोडश विकार और अष्ट प्रकृति, इस तरह से चतुर्विंशति पुरुष बनता है। यह भी श्लोक इम्पोर्टेंट है। बुद्धि इंद्रिय मनो अर्थान विद्याद योग धर्म परम, चतुर्विंशति हेष राशि पुरुष संज्ञा का, चरक शारीर 1/35. इट इज़ मेड ऑफ बुद्धि, मतलब कि आप चार्ट वाइज भी बना सकते हो। महत अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंचकर्मेंद्रिय वाक पाणी पायु पाद उपस्थ, उपस्थ मीन्स पेनिस, पायु मीन्स एनस। ये दोनों आपको याद रखने हैं, वाइवा में पूछते हैं और डिफरेंट है इसलिए। अर्थ पंचमहाभूत मन पर अव्यक्त। ओके, देन पंचविंशति धात्वात्मक पुरुष, मोस्ट IMP, बिकॉज ये गर्भशारीर में भी यही श्लोक आपको करना है। सो यहाँ पे भी आप ये श्लोक कर दीजिए। शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्मा प्रकृति विकार सम्मूर्छति गर्भ इति उच्यते, सुश्रुत शारीर 5/3. The Shukra and Shonit located in the Garbhashaya in the combination with the Atma, Prakriti and Vikar result in the formation of Garbhash. मतलब कि इन शॉर्ट आपको याद रखना है तो किस तरह से, षोडश विकार, अष्ट प्रकृति एंड आत्मा. ओके, लास्ट वन असंख्य धात्वात्मक पुरुष. ओके, उसका रेफरेंस है चरक शारीर 7/17. ओके, शरीर अवयवा तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्या भवन्ति, अति बहुत्वात्, अति सूक्ष्मात्, अति इंद्रियत्वात् च. Organs of the body are multiple in the number at molecular level. There are innumerable, very microscopic and not able to perceive by the sense organ. Okay, मतलब कि जो हम जो सेल की बात करते हैं, वेरी माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इस तरह से उन्होंने असंख्य धातुआत्मक पुरुष हमारे आचार्य चरक ने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है. सो इट वॉज रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पुरुष भेद. नाउ वी विल डिस्कस विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क. डिस्क्राइब द फर्स्ट फॉर 10 मार्क्स, डिस्क्राइब द कंस्टिट्यूशन ऑफ पुरुष अकॉर्डिंग टू धातु भेद. ये रिपीटेड पूछा जाता है. सो 10 मार्क्स के लिए यहाँ तक आपको चार्ट वाइज याद रखना है और फिर उसमें श्लोका भी एज वेल एज उसको एलोबरेट करते रहना है. एक्सप्लेन द त्रिगुणात्मक एंड त्रिदोषमयत्मम ऑफ शरीर. ओके, सेम while I have explained during the PPT. For 5 marks, describe the कर्म पुरुष. ओके, अब आपको लाइट होनी चाहिए. what I am trying to ask. राशि पुरुष सेम. दोष धातु मल मूलकत्वम. डिस्क्राइब द पंचभौतिकत्वम ऑफ शारीर. डिस्क्राइब द त्रिगुणात्मकम ऑफ शारीर. Explain त्रिदोषमयत्वम of sharira. Okay, for 5 marks. For 10 marks,
डिफाइन पुरुष, ओके, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था. राइट अबाउट एक धातुत्मक पुरुष, मतलब कि उसकी सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन है वो आपको लिखनी है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क फॉर 2 marks, 5 marks and 10 marks. Okay, thank you. Though if you have any query you can comment. Okay, thank you everyone.